गिरेबान से खींचते ला रहे हैं, गिरेबान से पंजा खोल के दुश्मन की किच्ची मराड़ के गिरेबान से खींचते ला रहे हैं, गिरेबान से खींचते ला रहे हैं, इसे इसलिए मारते आ रहे हैं, जिए कर रहे शिकायत सुनाना चाहना, करो आंखें नीची वो ज़हरा के दुश्मन, करो आंखें नीची वो ज़हरा के दुश्मन, जहन्नम में जाना पड़ेगा मेरी सुन है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत स्वाब खट के नारा बुलंद आवाज नाल छोड़ना बिल्कुल नहीं दुश्मन आले आबादा, छोड़ना बिल्कुल नहीं, छोड़ना बिल्कुल नहीं दुश्मन आले आबादा, 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 छोड़ना बिल्कुल दुश्मन आले आबादा, खुद पाक नबी फरमाया तेरे नारे तो जल जाए, छोड़ना बिल्कुल नहीं। जिबला साढ़े ते फतवे लेंदे असा नबी दे सहाबा ते गाला कढने आ, नहीं मेरा वीर, असी नबी दे सच्चे वफादार सहाबा ने पैरों की खाक अपनी सहाबी हो गए, असी जेड़े सहाबी नहीं उन्होंने असा जो कुछ आख रहे हैं बिल्कुल ठीक आख रहे हैं, कहते तबरका साड़ी की कहते तबरका साड़ी की मजाले, सुन गए मुल्ला साढ़े दिल दा ख्याल, कहते तबरका साड़ी की मजाले, सुन गए मुल्ला साढ़े दिल दा ख्याल, जेड़ा पाक कुरान जलावे नाले हक ज़हरा दा खावे, छोड़ना बिल्कुल साड़ी की मजाले, सुन गए मुल्ला साढ़े दिल दा ख्याल, कहते तबरका साड़ी की मजाले, सुन गए मुल्ला साढ़े दिल दा ख्याल, जेड़ा पाक कुरान जलावे नाले हक ज़हरा दा खावे, छोड़ना बिल्कुल नहीं दुश्मन आले आबादा, छोड़ना सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल, मोहब्बत अली दे जान पीवन वाले उले सलाम तो जदा नक्सन लोग इतराज करे सन, पहले जेड़े लंघ गए ने हक दे पुजारी सन, सानू रोकिया ओ बंदे सरकारी सन, पहले जेड़े लंघ गए ने हक दे पुजारी सन, क्यों सानू रोकिया ओ बंदे सरकारी सन, बिन टिकट अली दे जावे 16 साल आवे, छोड़ना बिल्कुल किसी दौर पर दी है
حاجی 20 منٹ لے گیا ہے حاجی 20 منٹ لے گیا 1 منٹ اور لے لو ایک اور رہ گیا ہاں چلو ٹھیک صلوات پڑھو بلند آواز نال اے فاطمہ زہرا تو معصوم زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو اے فاطمہ زہرا تو معصوم زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو معصوم زکیہ ہے اے فاطمہ بلند شان ہے تیرا باپ رسول اللہ شوہر ہے ولی اللہ تیرا باپ رسول اللہ شوہر ہے ولی اللہ حسنین سے مادی تک شاہد ہے کلام اللہ حسنین سے مادی تک شاہد ہے کلام اللہ ہر بارے دیگر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد تھوڑا سا ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ پتہ چلے سب ایک ہی ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک ساتھ علی کے مقدمے کرتے اور ایک ساتھ اس دنیا سے علی کی ولایت کے ساتھ جائیں گے ظاہر فرش اعضا کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھیں صلوات پڑھیں اس میں پہلے بیٹھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية الجارية على أعدائهم
ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صلوات پڑھیں محمد. عظمت مولا حسین کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، جس طرح سے دستور ہے اور یہ طریقہ مجلس بھی رہا کہ ہم اس مقدس پر شہزہ پر جب بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن ہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. کوئی بھی کسی طرح کی نیکی کرے اس کی جزا احسان ہے. تو ہم ان محسنین کو فراموش نہیں کر رہے ہیں جو اس مرکز میں، اس سینٹر میں، اس فرش اعضا پر آتے ہیں اور آ کر کسی بھی رخ سے اس مرکز کی، اس قصر ابو طالب کی مدد کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے مدد کی. پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں تمام خواتین کے لیے جو اس مرکز میں، کچن میں، مطبخ میں یہ مولا کی نظر کو بنا رہی ہیں، زحمتیں کر رہی ہیں، خدمتیں کر رہی ہیں. بہرحال جتنی بھی خواتین ہیں، ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اور ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو بھی اس قصر ابو طالب میں خدمت کر رہے ہیں، ہم بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کر کے ان کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار یہ حضرات تیرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کی محبت اور محبت کو تو نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. ان مقدس ہستیوں کا صدقہ جس کے لیے تو نے خود کہا ہے کہ ہم نے کائنات کو آپ کی محبت میں خلق کیا ہے، ان ہستیوں کا واسطہ ان کی تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو پوری فرما. جو لا اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد صالح اور اولاد نیک اور نرینہ عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علیہ السلام کا جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. جو افراد اپنے رزق کو چھوڑ کر اس پر شہزہ پر آتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ رزق ملتا ہے اہل بیت کے صدقے میں، فرش اعضا پہ جانے سے رزق پھٹتا نہیں پڑتا ہے. اذان گرامی ان تمام افراد کے رزق میں زیادتی عنایت فرما. ان کو اتنا دے دے پروردگار کہ وہ کائنات میں کسی کے محتاج نہ رہیں. تجھے واسطہ ہے محمد علیہ السلام کا تمام افراد عزادار اور اس کائنات میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کی مغفرت فرما اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور پھر سے ہم فرش اعضا پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حقیقتاً ہم دعائے زہرا ہیں. یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جس کے لیے فاطمہ زہرا نے دعا کیا تھا کہ پروردگار ایک قوم کو خلق کرے گا، ایک جماعت کو، ایک نیشن کو، ایک امت کو خلق کرے گا جو حسین کے ماننے والے ہوں گے. عزیزان گرامی، ہر شخص کی قسمت میں حسین کی عزاداری نہیں ہے، ہر شخص کے مقدر میں حسین کی عزاداری نہیں ہے. جس کی قسمت میں اور جس کے مقدر میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ یزید کے ساتھ رہ کر بھی اسے چھوڑ کے چلا. وہ
यजीद के लश्कर में रह के भी यजीद के लश्कर को ठोकर मार कर हुसैन के पास आके ये बताता है, हुसैन तेरी कदमों में जन्नत है। जहाँ दुनिया जन्नत तलाश कर रही थी, जहाँ पूरे अस्कर और लश्कर और फौज और सिपाही खड़े होकर यजीद का साथ दे रहे थे, वहीं एक सिपाही उठा और अपने बेटे को साथ लेकर कह रहा था कि वो देखो जहन्नम है और खैमों की तरफ देखो जन्नत है। गोया हुर ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, ये बताया, ये सिखाया, ये मैसेज दिया, याद रखो मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मुझ जैसा गुनहगार जो मुखालिफ अहले बैत था, जो हुसैन को घेर कर करबला में लाया था, लेकिन जरा सा मुझे एहसास हुआ कि यकीनन मैं जन्नत को छोड़कर जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ, मैं हुसैन को छोड़कर यजीद की तरफ जा रहा हूँ। अजीजों, मुझे बात समझ में ना आई कि क्या वजह थी अज़ान गिरामी कि जो एक दिन, तवज्जो चाहूँगा, एक दिन पहले तक लानतुल्लाह था, एक दिन बाद वही शख्स अलैहिस्सलाम हो गया। इस पर मैं सोच रहा था, मैं फिक्र कर रहा था, वजह क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है, सबक क्या है। जब मैं करबला की तारीख पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक गोशे पे मेरी नजर गई कि वजह क्या थी कि हुर को अलैहिस्सलाम होना पड़ा और हुर की मग़फ़िरत हो गई, हुर को रुमाले सैयदा मिल गया। अज़ान गिरामी, एक मैसेज है इस वाक़े में। मैंने जब ये देखा कि जब हुर इमाम हुसैन के लश्कर के करीब पहुंचा था, और जब इमाम हुसैन के लश्कर के करीब पहुंचा था, बहुत प्यासा था, उसके जानवर भी प्यासे थे, हजारों का लश्कर उसके साथ था, अरब का बहुत बड़ा बहादुर और दिलेर था, बहुत ही बहादुर मशहूर था हुर के लश्कर को हुसैन ने पानी पिलाकर दुनिया के तमाम उम्मत इस्लामिया को ये मैसेज दिया, हम और हैं जो पिलाते हैं दुश्मन को, हम तो उस दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं, हम तो उस दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं जो हमको और हमारे बच्चों को घेर कर मख्तल की तरफ ले जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम थे, वक्त के रहबर थे, मासूम थे, तवज्जो चाहूंगा, मासूम थे, वक्त के रहबर थे, मासूम थे, जानते थे कि ये हुर हमको घेर कर करबला में ले जाएगा, इसी हुर की वजह से मेरे बच्चे करबला में प्यासे रहेंगे, लेकिन हुसैन उसी हुर को पानी पिला रहे हैं। सलाम करो हुसैन की अजमत को, सलाम करो हुसैन की जलालत को। जब हुसैन ने हुर के लश्कर को पानी पिला दिया जाने गिरामी, और हुसैन के, तवज्जो चाहूंगा, हुसैन के काफिले को हुर ने रोकना चाहा और हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के करीब आकर हुर ने एक मर्तबा लजामे फरस में हाथ डालकर हुसैन के घोड़े को रोक दिया और रोक कर ये कहा कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर! क्या इमाम को पता नहीं था ये मेरे लश्कर को रोक देगा, ये मेरे काफिले को जाने नहीं देगा, ये मुझे घेर कर करबला की तरफ लेकर जाएगा। एक मर्तबा हुसैन को उस वक्त जलाल आ गया। जाने गिरामी, हुसैन तारीख कहती, जलाल के आलम में हुसैन ने हुर से ये कहा, सकलत का उम्मू का या हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अजीजों, ये नाराजगी का जुमला था, कोई खुशी का जुमला नहीं था। ये अरब के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अगर कोई ये कह दे कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अब हुर ने क्या जवाब दिया जाने गिरामी? हुर को जवाब ये देना चाहिए था हुसैन के कलाम को, लेकिन हुर ने हाथों को जोड़कर कहा, हुसैन हुसैन, मैं आपको जानता हूँ, आप फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, आपने मेरी माँ को कह दिया, मगर मैं आपकी माँ का नाम भी नहीं ले सकता, इस ज़बाने नजीस से आपकी माँ का नाम भी नहीं ले सकता। सलाम करो हुर की अजमतों को। हुर ने, तवज्जो चाहूंगा, अजमत फातिमा ज़हरा का ऐलान किया कि मेरे दिल में अजमत फातिमा ज़हरा है। हुसैन ने बताया कि अगर थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारे दिल में अजमत फातिमा ज़हरा आ जाए तो एक दिन पहले वही लानतुल्लाह था अब रहमतुल्लाह हो जाएगा, और इतना मुकद्दर उसका बदलेगा कि रुमाले सैयदा उसका मुकद्दर हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। है, इस फर्शज़ा की बरकत है। जाने गिरामी, हमें ये महसूस करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से ज़िक्र अहले बैत बाकी है, ऐसा नहीं है। आप ना आए फिर भी मजलिस होगी, आप ज़िक्र अहले बैत ना करें फिर भी मजलिस जाने गिरामी। ये गलत फिक्र है कि हम अज़ा खाने में जाएंगे तो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे तो फिर मजलिस अज़ा मुनक़िद नहीं है। जाने गिरामी, हम इनकी वजह से बाकी हैं, आप इनके जिक्र की वजह से बाकी हैं। तवज्जो चाहूंगा, आपकी वजह से ये बाकी नहीं है। जाने गिरामी, आप इनकी वजह से बाकी हैं। आपने इनको नहीं पहचानवाया, इन्होंने आपको पहचानवाया कि वो शेर हैं। क्या तारुफ
इंट्रोडक्शन था आपका, क्या कहते अपने आप को कायनात में, कैसे अपना तारुफ कराते जाने ग्रामी। मैं विवेचन पेश करना चाहता हूं आपके सामने। आप अपना इंट्रोडक्शन कायनात बशरी में, उम्मत मुस्लिमा में, दुनिया के तमाम ममलकत इस्लामिया में कैसे अपना तारुफ कराते, क्या बताते कि आप क्या हैं, मुसलमान बताते? तवज्जो चाहूंगा, क्या कहते मुसलमानों के झुरमुट में खड़े होकर, आप भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, घर लूटने वाले भी मुसलमान, घर जलाने वाले भी मुसलमान, कत्ल करने वाले भी मुसलमान, बम रखने वाले भी मुसलमान, मस्जिदों में शहीद करने वाले भी मुसलमान, बम, तवज्जो चाहूंगा, कायनात में कत्ल व गारत फैलाने वाले भी मुसलमान, दहशतगर्द भी मुसलमान, रज़ी अल्लाह भी मुसलमान, लानतुल्लाह भी मुसलमान। तो आप अपना तारुफ कैसे कराते? हर शख्स तो कह रहा था मुसलमान, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। अज़ान ग्रामी दुनिया ममलकत में आज जब मैंने 1400 साल के बाद देखा, मुझे 20 साल हो गया मजलिस आज़ा पढ़ते हुए, मैंने इस तमाम जिंदगी का खुलासा ये महसूस किया कि जब लोगों ने ये देखा कि अपने आप का तारुफ, अपने आप का इंट्रोडक्शन हम अगर मुसलमान से सिर्फ कराएंगे तो फिर हमारा शुमार यजीदियों में होगा, हमारा शुमार मरवान वालों में होगा, हमारा शुमार तैयबा और अतैबा में होगा, हमारा शुमार लश्कर यजीद में होगा, हमारा शुमार लश्कर अबू सुफियान में होगा। तो मुसलमानों ने ये देखा, उम्मत इस्लामिया ने देखा। तवज्जो चाहूंगा कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, हर शख्स ये कहता है हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। ढोल बजाने वाला कहता है हुसैन हमारे हैं, जो ताशा बजा रहा है वो भी हुसैन हमारे हैं, सड़कों पे चलने वाले वो भी हुसैन हमारे हैं, मजनून है वो भी हुसैन हमारे हैं। तो आप फर्क कैसे करेंगे हुसैन किसके हैं, हुसैन किसके नहीं हैं? आपको इन जमातों से अपने को अलग करना होगा। कुछ जमात वो है जो जरूरत में हुसैन को इस्तेमाल करते हैं, तो जो चाहूंगा कुछ जमात वो है जो जरूरत में हुसैन को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए इनको पता है कि अगर हुसैन के खैमे में हम ना ले आएंगे तो दुनिया हमें यजीदी कहेगी, लिहाजा यजीद से डरकर ये हुसैन के खैमे में आके ऐलान करते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। फर्क कैसे समझोगे? याद रखो, फर्क एक ही है, जो हुसैन को माने और हुसैन की माने वो हुसैनी है, जो सिर्फ हुसैन को माने और हुसैन की ना माने वो यजीदी है। दहशतगर्द मुसलमानों के दरमियान आप कैसे लोग आपको रिकॉग्नाइज करते कि वो जो खड़े हैं वो शिया नेज़रे कर रहा है, वो अली के चाहने वाले हैं। गोया आपका जो तारुफ हुआ, आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ, आप जो पहचाने गए मोहब्बत अहले बैत और सीरत अहले बैत की वजह से। इन्होंने बताया कि सर काटने वाले अलग हैं, सर देने वाले अलग हैं। इन्होंने बताया कि तवज्जो चाहूंगा, सजदे में जो सर काटते हैं वो और हैं, जो सजदे में सर कटाते हैं वो और। इन्होंने बताया कि लूटने वाले और हैं और हालत रुकू में ज़कात देने वाले और हैं। इन्होंने आपको फर्क समझाया और इन्होंने मेराज बताई, नमाज की मेराज बताई। कहाँ मिलता है जाने ग्रामी? नहजे बलागा जब आप पढ़िए तो इसके पहले खुतबे में अली ने तवज्जो चाहूंगा रुबूबियत को समझाया है, खल्लाकियत को समझाया है, परवरदिगार की कुदरत को समझाया है, उसकी ममलकत को समझाया है, उसके अख्तियारात को समझाया है, उसकी रहमानियत को समझाया है, उसके जूद व सखा को समझाया है, उसके रज़्ज़ाकियत को समझाया है, उसकी मुद्दत और मोहब्बत को समझाया है, उसके कायनात पे अख्तियार को समझाया है। उसमें तवज्जो चाहूंगा इसी नहजे बलागा में अली ने बताया कि क्रिएशन, तवज्जो चाहूंगा ये खिलकत कहते किसे हैं और कायनात में तवज्जो चाहूंगा खिलकत कैसे हुई, कितने दिन में जमीन को खल्क किया गया, कितने दिन में आसमान को खल्क किया गया। आज दुनिया तवज्जो चाहूंगा तरक्की के बामे कमाल पर है, लेकिन आज तक दुनिया ये न लिख सकी कि जमीन और आसमान की खिलकत कितने दिनों में हुई, कितने डेज लगे जमीन और आसमान की खिलकत में। अगर कुरान न बताता, अहले बैत न बताते अज़ान गिरामी, तो सलाम करो मुकद्दस हस्तियों को जिसने आपको ये बता दिया कि तवज्जो चाहूंगा आप वो हैं जो महबूब इंदल्लाह।
इन्होंने बताया, इन्होंने तारुफ कराया। तो हम फर्श अज़ा पे जब आते हैं, मजलिस हुसैन में आते हैं, तो उनसे अलहदा करके अपने आप को फर्श हुसैन पर बिठा के ये बताते हैं कि हम 1400 साल के बाद आज भी दहशतगर्दी, टेररिज्म और वक्त के सबसे बड़े टेररिस्ट यजीद को कंडम करके और हुसैन के सदाए पीस पर लब्बैक करके ये बताते हैं कि हमारी हर सदा में पीस है, हमारी हर गुफ्तगू में पीस है, हमारे लहन में पीस है, हमारे कलाम में पीस है, हमारे जुलूस में पीस है। हम अमन शांति के ऐसे रहबर को मानते हैं जिसे हुसैन कहा जाता है। हम अमन शांति के ऐसे रहबर को मानते हैं जिसे सैयदा का लाल कहा जाता है। तो फर्श अज़ा की अजमत को समझो, इसके वक़ार को समझो, इसके तौक़ीर को समझो। अगर ये इतना बुलंद ना होता तो आसमान की बुलंदियों को छोड़कर वहां की मखलूक यहाँ ना आती। आसमान की बुलंदियों को छोड़कर वहां की मखलूक यहाँ ना आती। अज़ान गिरामी, तो हम ज़वात अहले बैत के जरिए से कायनात में पहचाने जा रहे हैं और इन्हीं के जरिए से अब तक पूरी दुनिया ये पूछ रही थी। अज़ान गिरामी, सवाल ये होता है कि ये कौन सी ऐसी कौम है जो दुनिया ममलकत में ताग़ी और तुग़ात के सामने आज तक टिकी हुई है? ऐसी कौन सी ये कौम है कि जिसके खिलाफ पूरी कायनात है? ये कौन सी ऐसी कौम है कि दुनिया में इतनी मुमलकत मुस्लिमा है जो इनकी मुखालफत करती है, लेकिन चंद अफराद ऐसे हैं जो कायनात पर भारी हैं। इन्होंने अपने किरदार से दिखाया, अपने अमल से बताया, अपने अंदाज से बताया। दुनियाएं तवज्जो चाहूंगा ताग़ी और तुग़ात की आंखों में आंखें डालकर ये बताया कि हम जब तक जिंदा हैं हम ये बताएंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत क्या है। हम ये बताएंगे अज़ान गिरामी, वरना आप तसव्वुर करें कि मुख्तसर सा एक ग्रुप, मुख्तसर सी एक टीम, मुख्तसर सा एक हिज़्ब जिसे हिज़्बुल्लाह कहते हैं, वो 33 डेज तक यहूदियत से टकराती रही। वो मुल्क नहीं है, ममलकत नहीं है, हुकूमत नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, एक मुख्तसर सी जमात है जो ताग़ी और तुग़ात आलम की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने सीरत हुसैन को अपना के बताया कि हर दौर के बातिल से हम नहीं घबराते, हर दौर के तवज्जो चाहूंगा हम जालिम से नहीं घबराते, हर दौर के हम फासिक से नहीं घबराते। फासिक जिस जमाने में चाहे आ जाए, जिस दौर में चाहे आ जाए, जिस लम्हे हयात आ जाए, यजीद जब चाहे जिस तरह का चेहरा बदल ले, चाहे यहूदी बन के आए और चाहे वहाबी बन के आए, हम आंखों में आंखें डालकर बताएंगे कि हम हुसैनी हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने किरदार से ये पेश करके बताएंगे। अब तक तुम हमसे सवाल ये करते थे, तवज्जो चाहूंगा कि मरने के बाद फिशारे कब्र होता है, मरने के बाद अज़ाबे कब्र होता है, और सीरिया में तुमने हमारे एक को निकालकर, हुज्र बिन अली के लाशे को निकालकर तुमने देख लिया कि 1400 साल पहले जो लाशा कब्र में मदफून था, दफन था, जिसकी ज़ियारत आप आज़ाद कर चुके हैं, तो तुमने हमारे एक को कब्र से निकाल के देखा। तवज्जो चाहूंगा, जैसा जिस्म कल था वैसा जिस्म आज है, तो तुमने हमारे वाले को निकाल के देख लिया, अब अपने वाले को निकाल के देखो। हुसैन की मोहब्बत। और मासूम फरमाते हैं, मासूम की हदीस है कि इन्ना शियातना, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना शियातना यकीनन, बेशक बितहकीक, बगैर शक के, बगैर रैब के, इन्ना शियातना यखरुजूना मिन कुबूरिहिम, यकीनन बेशक बितहकीक हमारे शिया, हमारे चाहने वाले कब्र से निकलेंगे। वमा हुम अला मा हुम मिन अज़्ज़ुयून वल उयूब व वजूहुम कल कमर वल बद्र। जब हमारे शिया कब्र से बाहर निकलेंगे तो उनका चेहरा चांद और सूरज की तरह चमकता हुआ। मौला ने इरशाद फरमाया, किताब का नाम बहरुल गुम्मा, उस किताब में मौला ने इरशाद फरमाया कि हमारे चाहने वाले जब कब्र से निकाले जाएंगे तो उनका चेहरा चांद की तरह चमकेगा। यानी दूर से महशर में या कब्र में लोग देख कर कहेंगे वो शियाने हिजरे कर रहा जा रहे हैं, वो अली वाले जा रहे हैं, वो हुसैन के चाहने वाले जा रहे हैं। तो फख्र किया करो और सलाम किया करो, अपनी माओ को सलाम किया करो जिन्होंने ऐसी तरबियत दी है। अज़ान गिरामी, ये सलाम करो अपने अशीरे को, अपने कबीले को, अपने जनरेशन को, अपने खानदान को सलाम करो, और उन माओ को सलाम करो जिन्होंने रगों में विलायत अली, मोहब्बत अली को उड़ेल दिया। तवज्जो चाहूंगा कि अज़ीज़ान गिरामी, आपको मोहब्बत, तवज्जो चाहूंगा, खिलकतन मिल गई है, अशीरतन मिल गई है, आपको मोहब्बत ऐसे ही मिल गई है, इसलिए आप शिया के घर में पैदा हो गए, मुहिब्बे अली के घर में पैदा हो गए। वरना तसव्वुर करो अज़ान गिरामी, इस मोहब्बत की कीमत क्या है। उन माओ को सलाम करो जिन्होंने आपको बता दिया कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है, और उन माओ ने आपको मंजिल कमाल तक
पहुंचा दिया। उन माओ ने आपके कान में अजान कहा, आपके कान में तकबीर कहा, आपको बचपन में बताया विलायत कहते किसे हैं, अहले बैत कहते किसे हैं। बच्चा पैदा होने के बाद चंद साल का बच्चा हुआ, उससे आपने पूछा इमाम कितने, उसने कहा 12 इमाम। मासूम कितने, कहा 14 मासूम। करबला के शहीद कितने, उसने कहा 72 शहीद हैं। कहा आसमानी किताब कितने, कहा 4 हैं। काबा कहाँ है, कहा मक्के में है। करबला का शहीद सबसे अजीम सैयद शुहदा कौन है, कहा इमाम हुसैन है। यजीद कौन था, कहा दहशतगर्द। किसने बताया? तो सलाम करो माओ को, उन माओ को सलाम करो जिसने आपको ये तरबियत दी। अब एक हदीस सुनो अजीजाने गिरामी, और रिवायत सुनो। सरकार के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत की चौखट को चूम रहा हूँ। जज़ाकल्लाह चाहूंगा इस जुमले पर गौर कीजिएगा। कौन है? एक शख्स है। जा शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल लिन्नबी या नबी राइतु फिल मनाम बिअन्ननी ज़हबतु इलल जन्नह व राइतुल जन्नह व ज़हबतु इलल जन्नह। मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के करीब गया और मैंने अपने होठों से जन्नत की चौखट को चूम लिया। आप सरकार हैं, नबी हैं, वारिस शरीयत हैं, दीन लेकर आए हैं, इस ख्वाब की ताबीर बताइए। हम आप होते तो क्या ताबीर बताते? क्या ताबीर बताते? यही कहते हैं ना कि जन्नत का आपने ख्वाब देखा है, परवरदिगार आपको जन्नत नसीब करे। भाई दुनिया में किसी शख्स से आप पूछें कि फलां ने जन्नत को देखा है ख्वाब में, तो क्या जवाब देते? आप क्या जवाब देते? कहते कि जाओ परवरदिगार तुम्हारे मुकद्दर में जन्नत रखेगा। लेकिन वारिस शरीयत ने कहा कि तूने जन्नत को ख्वाब में देखा? जी सरकार, जन्नत को ख्वाब में देखा। फौरन वारिस शरीयत मुस्कुराए, कहा तुझे मुबारक हो, जा और जाके अपने माँ के कदमों को चूम ले, गोया तूने जन्नत को चूम लिया है। सुने वो बच्चे जो अपने माँ का तवल्लुद चाहूंगा ख्याल करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। सुने वो बच्चे और वो बच्चियां, जा अपने माँ के कदमों को चूम ले। एक मर्तबा सर झुका लिया उसने। सरकार, अफसोस ये है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, बदनसीब हूँ, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अब क्या करें सरकार? क्या जवाब देना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था नबी को? नबी ने कहा घबराने की बात नहीं है, ठीक है तेरी माँ इस दुनिया से चली गई, माँ की कब्र पे चला जा, जा माँ की कब्र पे चला जा और माँ की कब्र के पायती जानी माँ की चौखट को चूम ले, गोया तूने जन्नत के दरीचे को चूम लिया है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा इस जुमले को सुनने के बाद वो शख्स रोने लगा और रोकर कहता, सरकार मगर अफसोस इस बात का है कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था तो मैं इतना कमसिन बच्चा था कि मेरी माँ का कब्र का नामो निशान मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मेरी माँ किस कब्र में, किस मकबरे में, किस कब्रिस्तान में दफन है, मुझे कब्र का नामो निशान नहीं है। सरकार मैं इस मन्नत को, इस हाजत को कैसे पूरा करूं? अब एक मर्तबा वारिस शरीयत ने हुक्म दिया, जा और जाकर ख्याल में, तसव्वुर में, इमेजिनेशन में, अपने तसव्वुर में माँ की कब्र बना ले। और चाहूंगा माँ की कब्र की शबी बना ले। अब जो शबी की मुखालफत करते हैं, जो अलम की मुखालफत करते हैं, जो मिंबर रसूल की मुखालफत करते हैं, जो ताबूत की मुखालफत करते हैं, जो जरिए हुसैन की मुखालफत करते हैं, वारिस शरीयत का जुमला सुनिए। वारिस शरीयत कहते हैं वो तेरी माँ की कब्र नहीं है, लेकिन ख्यालों में माँ की कब्र बना ले, तखय्युलात में माँ की कब्र बना ले, अपने फिक्रों में माँ की कब्र बना ले और जमीन पर माँ की कब्र को खींच कर, तब मैं चाहूंगा खत खींच कर माँ की कब्र ख्यालात में बना के माँ की कब्र की शबी और उसको चूम ले, गोया तूने अपने माँ की कब्र को चूम लिया। मैंने हाथों को जोड़कर सलाम किया, सलाम हो वारिस शरीयत, ऐ नब्ज़तुल अंबिया, ऐ खुलासतुल अंबिया, ऐ सरताज कायनात, आपने मसले को हल कर दिया। अब आने वाली नस्लों को आपने ये बता दिया कि शबी अगर माँ के कब्र की शबी बनाई जा सकती है तो जिसमें माँ को जीने का सलीका बताया, उनकी शबी क्यों नहीं बनाई जा सकती? सीखने की जरूरत है, हमें मासूम से सीखने की जरूरत है, हमें मासूम से तरबियत लेने की जरूरत है। हमें मासूम से सीखना चाहिए कि मासूम किस तरीके से बुजुर्गों का एहतराम करते थे, मासूम किस तरीके से बड़ों का एहतराम करते थे। जिस कौम में बुजुर्ग का एहतराम खत्म हो जाता है वो कौम भी खत्म हो जाती है। आप याद रखिए इस जुमले को।
पूरी कायनात में जाकर देख लीजिए, जिस कौम में बड़ों का एहतराम नहीं होता वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए कि अगर उस कौम के बुजुर्ग खत्म हो गए तो कौम खत्म हो जाएगी। अज़ान गिरामी, तो इसी शरीयत ने हमको सिखाया, इसी मजहब ने हमको सिखाया, इन्हीं हस्तियों ने हमको सिखाया कि किस तरीके से हमें बच्चों का एहतराम करना चाहिए, किस तरीके से बड़ों का एहतराम करना चाहिए, किस तरीके से कम्युनिटी का एहतराम करना चाहिए, किस तरीके से वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह पर जो लफ्ज आ जाए हम किसी के खिलाफ बोल दें, किसी की ग़ीबत करने लगें, किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल दें। अज़ान गिरामी, हक़्क़ुल बात बहुत सख्त मसला है। अज़ान गिरामी, अगर आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, मैं इस जमात के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक आम बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी बशर किसी के खिलाफ बोलता है, ग़ीबत करता है, मुखालफत करता है, अपने दिल में हसद रखता है, कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, तो ये तमाम नजासतें जब दिल में होती हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने साले गुज़िश्ता आयत पढ़ी थी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। क्या मकसद है कि अहले बैत जहां आप हैं वहां नजासत नहीं, जहां नजासत है वहां आप नहीं। तो अगर कुलूब पाक होंगे, खबासत से पाक होंगे, आप दिल में तवज्जो चाहूंगा, दिल बशर अगर खबासत से पाक होंगे, नजासत से पाक होंगे, ग़ीबतों से पाक होंगे, हसद से पाक होंगे, कीना से पाक होंगे, बुग़्ज़ से पाक होंगे, तो फिर इसमें अली भी होंगे और औलादे अली भी होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। आज 1400 साल के बाद हमारी खुशनसीबी है, हमारी खुशनसीबी है कि जाहिर सी बात है, हम जो हज करते हैं हमारा हज सही है। हमसे अच्छा हज किसका है? हमने तो उनसे सीखा है जो अल्लाह से डायरेक्ट लेकर इल्म आए थे। हमने जमीन पर बैठने वाले अफराद से इल्म नहीं लिया। जमीन पर बैठकर जो सीखते हैं वो पहले जाहिल होते हैं फिर आलिम होते हैं। एक शख्स पहले जाहिल था, उसने इल्म सीखा, वो पहले जाहिल फिर आलिम। लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो इल्म लेकर आती हैं। आप कहेंगे मौलाना दलील दीजिए, मैंने कहा ठीक है, कुरान पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रहमान सबको याद है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने खल किया। तो चाहूंगा अर्रहमान खलकल इंसान, अर्रहमान खलकल इंसान, अल्लमल कुरान, इंसान को खल किया। कुरान की तालीम की तवज्जो चाहूंगा। तो जब रहमान ने तवज्जो चाहूंगा, सबसे पहले कुरान की तालीम की तवज्जो चाहूंगा। इल्म पहले देता है, दुनिया में बाद में भेजता है। माशाअल्लाह। अर्रहमान, रहमान ने खल किया बशर को। वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनको खल्क करने से पहले इल्म देकर परवरदिगार इस दुनिया में भेजता है। जब हमने कुरान की आयतों की तिलावत की तो जब ये देखा कि मरियम के पास एक जमात गई, जाहिर हर ज़माने में शक करने वाले लोग होते हैं और शुबहात रखने वाले लोग होते हैं। जनाब मरियम के तक़द्दुस पर शक किया। जाहिर घबराए न कीजिए, हर दौर में शक व शकीन का मजमा होता है। लोग शक करने वाले हर मुल्क में पाए जाते हैं। मरियम के पास लोग जाकर कहने लगे, मरियम तूने क्या किया, ये बच्चा कहाँ से आया? तो एक मरतबा कुरान ने पढ़ के आवाज़ दी, फ़अशारत इलैहि, जनाब मरियम ने इशारा किया। फ़क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, हम इस बच्चे से कैसे कलाम करें? कौन कह रहा है? ये कह रहे जिनकी अक्ल महदूद थी, जिनका जहन महदूद था, जिनका दिमाग महदूद था, वो एक नबी के लिए कहने लगे कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, इस मासूम बच्चे से, इस छोटे से बच्चे से जो अभी आगोश मादर में लेटा हुआ है, हम कैसे बात करेंगे? तो एक मरतबा तवज्जो चाहूंगा, नबी ने आवाज दी, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वजअलनी नबिय्या, आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह ने किताब दिया है और मुझे नबी बनाकर भेजा है। तवज्जो चाहूंगा तो पता चला जो यहाँ के बंदे होते हैं वो खल्क होने के बाद इल्म हासिल करते हैं, जो वहां से आते हैं इल्म लेकर आते हैं। सलवात पढ़े। अब मौला ने इरशाद फरमाया कि इन्नी आलमु तुर्क़स समावाति वल अर्ज़, माशाअल्लाह, से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। इसको उल्टा कर लीजिए, मैं आसमान के रास्तों को ज्यादा जानता हूँ, जमीन के रास्ते को कम जानता हूँ। तो अगर इंसान फलसफा न पढ़ा हो, हौजे में न गया हो, इराक शाम ईरान में न पढ़ा हो, तो इसका मतलब क्या निकालेगा कि नौज़ बिल्लाह मौला अली को आसमान के रास्ते ज्यादा पता है, आज जमीन के रास्ते कम।
यही हुआ ना, इन्नी आलमो तुर्क़स समावाति वल अर्द, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। क्या मतलब हुआ मौला? यानी आप आसमान के रास्ते को ज्यादा जानते हैं, जमीन के रास्ते को कम जानते हैं, यही मतलब हुआ अज़ीज़ाने गिरामी। लेकिन सलाम करो ज़वात अहले बैत को जिसने सिखाया और बताया। जाने गिरामी कैसे पता चलता? साइंस का इंतजार करते कि साइंस आए और आकर साइंस जमीन के रास्तों को बता देती, आसमान के रास्तों को कौन बताता? इसी सादिक़ आले मोहम्मद ने बताया, अली के इस जुमले की तफसीर की, कहा याद रखो इसलिए अली ने कहा क्योंकि जमीन के रास्ते कम हैं, इसलिए अली ने कहा इन्नी आलम तुर्क़स समावाति वल अर्द, मैं आसमान के रास्तों को ज्यादा जानता हूँ, जमीन के रास्ते को कम जानता हूँ। उसकी वजह यह थी आसमान के रास्ते ज्यादा हैं और जमीन के रास्ते कम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मन की कच्ची मुराद के नारे गिरामी, लिहाजा ये खुशनसीबी है मुहिब्बान अहले बैत की कि जिनकी नमाज कबूल होती है। कायनात में किसकी नमाज कबूल होती है? सिर्फ उन अफराद की कि जिनके कलेजों में अली की विलायत होती है। बगैर विलायत के, बगैर मोहब्बत अहले बैत की नमाज कबूल है? हो सकती है। अगर हो जाए तो वहाबियों से ज्यादा कौन नमाज पढ़ता है? कौन पढ़ता है हमसे ज्यादा? रात भर तरावी पढ़ते हैं, अल्लाह भी करते रहते हैं, तो उनको जन्नत में जाना चाहिए। तो उनसे ज्यादा कौन आबिद है? अज़ीज़ाने गिरामी, तो विलायत अली, मोहब्बत अहले बैत बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर न नमाज कबूल, न रोज़ा कबूल, न हज कबूल, न ज़कात कबूल, न खुम्स, कुछ भी कबूल नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, कल इस पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ भी कबूल नहीं है, इसलिए कि बगैर विलायत के ना नमाज कबूल, और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत दिल में रख ले और कहे मैं नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, हज नहीं करूँगा, तवज्जो चाहूँगा, बुजुर्गों का एहतराम नहीं करूंगा, वालिदैन का एहतराम नहीं करूंगा, तो उसके अमाल कबूल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? इसलिए अज़ाने गिरामी कि सरकार ही ने तो इरशाद फरमाया है कि इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, हमने दो गिरा कद्र चीजें छोड़ी है, दो मुअक्कद चीजें छोड़ी है, दो मुबज्जल चीजें छोड़ी है। एक कुरान है, एक शरीयत है, एक कुरान है, एक शरीयत है, और एक मेरी अहले बैत, मेरी इकरत है। अज़ाने गिरामी, ना कुरान को छोड़ना, ना अहले बैत को छोड़ना। क्यों? हत्ता यरदा लन यफ्तरिका व हत्ता यरदा अलैहिल हौज, ये कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। ना कुरान अहले बैत को छोड़ेगा, ना अहले बैत कुरान को छोड़ेंगे। जब अहले बैत कुरान को नहीं छोड़े तो हम क्यों कुरान को छोड़ दें? हम क्यों नमाज को छोड़ दें? हम क्यों रोजे को छोड़ दें? हम क्यों खुम्स ज़कात को छोड़ दें? इसलिए कि अहले बैत का पैगाम ये है, हमारा चाहने वाला वो है जो हमारे साथ शरीयत मोहम्मदी को भी माने। इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन किताबल्लाह व इतरती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर इनसे मुतमस्सिक रहोगे, इनके दामन से लिपटे रहोगे, लन तदिल्लु बादी, लन इस्तेमाल होता है कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं का क्या मतलब? 10 साल बाद नहीं, नेवर, कभी आप गुमराह नहीं होंगे। हत्ता यरदा अलैहिल हौज, यहाँ तक ये दो गिरा कद्र चीजें हम तक पहुंच जाएंगी। अज़ीज़ाने गिरामी, तो वारिस शरीयत ने हमको बताया कि कुरान और इतरत दोनों हमें साथ में लेके चलना है, और जिनके पास कुरान हो सिर्फ इतरत न हो, वक्त का हाकिम भी हो तो मजमा उसे ठोकर मार देता है। वक्त का हाकिम भी हो तो मजमा उसे ठोकर मार देता है। एक वक्त का हाकिम बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए गया, हज बैतुल्लाह के लिए गया, और उसके साथ अस्कर भी है, लश्कर भी है, फौज भी है, दबदबा भी है, उसके साथ फौजे भी हैं, हटो और बच्चों की सदा भी है, चारों तरफ हमहमाहट भी है, दौलत का दबदबा भी है, तख्त का दबदबा भी है, सर पे ताज भी है, और हज बैतुल्लाह को जाने की कोशिश कर रहा है। हरम के अंदर चाहता है कि हजर अस्वद को चूम ले, लेकिन मजमा है कि हटता नहीं है। जब थक गया हाकिम वक्त और थक कर बैठ गया, एक मर्तबा परेशान होकर उसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे पास दौलत भी है, ताकत भी है, अस्कर भी है, लश्कर भी है, फौज भी है, दबदबा भी है, जाहो हशम भी है, तख्त भी है, ताज भी है, सारी चीजें होने के बावजूद मैं हजरे अस्वद को चूम नहीं पा रहा हूँ। अज़ाने गिरामी, यही तो मैंने कहा कि जब हुकूमत और हाकिम थक कर बैठ जाए तो वारिसे काबा खड़ा होता है। वारिसे काबा
खड़ा होता है। अब वारिस काबा खड़ा हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने हाथों को जोड़कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक हाकिम वक्त है, ये थक कर बैठ गया, मजमे से हजर अस्वद तक जाने नहीं देता, मजमे से हजर अस्वद को चूमने नहीं देता, मजमे से जाने नहीं देता। इसके साथ अस्कर भी है, लश्कर भी है, फौज भी है, दबदबा भी है, तवज्जो चाहूंगा, हटो और बचो की सजा भी है, ये हाकिम वक्त भी है, सर पर ताज भी है, लश्कर लेकर आया है, फौज लेकर आया है, ये हजर अस्वद तक जा नहीं पाता। मौला आप इमाम वक्त हैं, आप हजर अस्वद तक ना जाइए। मुस्कुरा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देंगे, अरे तुम्हें नहीं पता मैं उसका बेटा हूं जिसकी जद्दा को दरबारा शक होकर दीवार में बुलाया था। मैं उसका बेटा हूं, ये वारिस शरीयत, मैं उसका बेटा हूं जिसकी जद्दा को दीवार में शक होकर बुलाया था। अब तारीख के मुर्रिख ने लिखा, इंदमा ज़हबल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इलल काबते व अरादा अन यज़हब इला हजरिल अस्वद। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे के करीब हुए, इक़्तरबल इमाम मिनल काबा, इमाम काबे के करीब हुए और करीब हुए। अब तारीख कहती है कि मजमे को देखा, राइटर लिखता है, मुर्रिख लिखता है, जब मजमे को देखा तो मजमा काई की तरफ फटने लगा, फटने लगा, हटने लगा, मजमा दौड़ने लगा और हाकिम वक्त देखने लगा, ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, ये वक्त का कौन है, ये कौन है, मैं तो हाकिम भी हूँ, मेरे साथ सारी कुव्वतें भी हैं, लेकिन मजमा नहीं हटता, ये कौन शख्स आ गया कि मजमा काई की तरफ फटने लगा, मजमा भागने लगा। एक मरतबा मजमे में पढ़कर, तवज्जो चाहूंगा, मजमे ने पढ़कर ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को बोसा लिया और बोसा लेने के बाद कहा, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत आप पर मेरा सलाम हो। मजमा काई की तरफ फटा और फटने के बाद इमाम को रास्ता दिया, इमाम को रास्ता दिया, इमाम को रास्ता दिया। वही मजमा है, मजमा वही है, वो जाज वही है, अफराद वही हैं जो चंद लम्हे पहले एक हाकिम को, तवज्जो चाहूंगा, जगह नहीं देते, रास्ता नहीं देते, लेकिन जब वक्त का वारिस खड़ा हुआ, वक्त का इमाम खड़ा हुआ, वक्त का मासूम खड़ा हुआ, वक्त का कायद खड़ा हुआ, वारिस काबा खड़ा हुआ, वारिस सफा मरवा खड़ा हुआ, तो मजमे ने हटकर बताया तुम और हो, ये और है। बंदों ने तुम्हें बनाया है, इन्हें खुदा ने बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी, तो उस वक्त एक फरजदक बहुत बड़ा शायर बैठा हुआ था। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा इस जुमले को हमेशा, जब तक जिंदा रखिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त एक बहुत बड़ा शायर बैठा हुआ था। माजी में होता यह था कि दरबारी बहुत से शोरा होते थे, बहुत से ऐसे अफराद होते थे जो बादशाह की मोहब्बत और मोहब्बत में उनके मध्य में शेर कहते थे और दरबार में बैठे रहते थे, खाते पीते सोते थे। उनका यही काम होता था कि बादशाह को खुश करो, उसकी मोहब्बत में शेर कहो। अज़ीज़ान गिरामी, तो जब इस तवज्जो चाहूंगा, इस वारिस काबा को एक मर्तबा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने देखा और देखने के बाद कहा, मन हाथ रजुल, ये कौन है कि जिसकी वजह से मजमा हट गया, मजमा काई की तरफ हट गया, ना फौज के दबदबे से हटा था, ना लश्कर के खौफ से हटा था, ना ताज के खौफ से हटा था, ना मेरी हुकूमत के डर से हटा था, ना मेरे जाह हशम को देखकर हटा था, ये कौन है? तो एक मर्तबा फरजदक ने कहा, तू इन्हें नहीं जानता? अल्लाह अकबर, तू इन्हें नहीं जानता? काबा इन्हें पहचानता है, सफा मरवा इन्हें पहचानता है, मक्का की सरजमीन इन्हें पहचानती है, जमजम का पानी इन्हें पहचानता है। अरे तू मक्का को जानता है, मक्का को जानता है, मक्का के तवज्जो चाहूंगा, इस नूर को नहीं जानता, काबे की इजारत के लिए आ गया। अरे काबे को तू जानता है, वारिस काबा को नहीं जानता। काबे को जानता है, वारिस काबा को नहीं जानता। ये वारिस काबा है, ये वारिस सफा और मरवा है, ये वारिस हज बैतुल्लाह है, ये वारिस जमजमा है, जमजम है। ये वो है जिन्हें जमजम सलाम करे, ये वो है जिन्हें मक्का सलाम करता है, ये वो है जिन्हें काबा सलाम करता है। यही तो वारिस काबा है। तो एक मर्तबा फरजदक जो शायर था, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का शायर था, हाकिम का शायर था, जब एक मर्तबा देखा तो देखने के बाद उसी वक्त फरजदक ने शेर कहा। और शेर जब फरजदक ने, क्या जाने मोहतरम, जाहिर सी बात है कि अगर इस मजमे में कोई हाकिम आ जाए, बहुत बड़ा मेयर आ जाए और कोई मजमा ना उठे, अचानक कोई शख्स आ जाए और उसकी वजह से पूरा मजमा उसका एहतराम करने लगे तो हैरानी तो होगी, क्या वजह है? और फरजदक ने शेर कहा, मोहब्बत अहले बैत में, मोहब्बत इमाम ज़ैनुल आबिदीन में। और शेर कहने के बाद उसने हिशाम बिन अब्दुल मलिक को शेर सुनाया।
शेर सुनने के बाद एक मर्तबा हिशाम बिन अब्दुल मलिक नाराज हो गया, कहने लगा ऐसा शेर तूने इनकी शान में कहा, तूने कभी हमारी शान में ऐसा शेर कहा? कमबख्त तुझे क्या हो गया? तू मेरा शायर, खाता मेरा है, दरबार में मेरे रहता है, दौलत मुझसे लेता है, कलम भी मेरा है, कागज भी मेरा है, खाता भी मेरा है और गाता इनकी है, शेर इनके मध में कहता है। अब तारीख में लिखा जाने गिरामी इस वाक्य को कोट किया तारीख ने। एक मर्तबा वक्त के शायर ने फरजदक ने हिशाम की आंखों में आंखें डाल के कहा कि तू ये कहता है कि मैं तेरी मध में शेर कहूं? अगर तेरा बाप इनके बाप जैसा हो तो बता, तेरा दादा इनके दादा जैसा हो तो बता, तेरी दादी इनकी दादी जैसी हो तो बता, तेरी माँ इनकी माँ जैसी हो तो बता, तेरा भाई इनके भाई जैसा हो तो बता, तेरा नूर इनके नूर जैसा हो तो बता। अरे तवज्जो चाहूंगा, मैंने शेर इसलिए कहा कि तू और है, तू खाकी है, ये नूरी है, तू जहन्नमी है, ये जन्नती है। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला ज़ाने गिरामी, एक मर्तबा फरजदक ने आंखों में आंखें डालकर कहा याद रख, ये वो है जो जमीन पर आकर जमीन के मुकद्दर को बदल देते हैं। पत्थर को उठाएं तो पत्थर कलाम करे, काबे में जाएं तो काबा सलाम करे, जमजम को पिए तो जमजम बोसा ले, सफा मरवा के दरमियान जाएं तो सफा मरवा झुक के सलाम करे, जबल की तरफ जाएं तो पहाड़ इनकी अजमत को सलाम करे। तू अजमतों के पीछे भागता है, ये वो है जिनके पीछे अजमतें भागती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि कुल्ले ईमानदार हैदरी नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अलियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इससे मुकाबला कौन करेगा? इन्होंने सजदे की हकीकत को पहचानवाया, इन्होंने बताया सजदा कहते किसे हैं। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज पढ़ने से इंसान को बुलंदी अता होती। किसने बताया? इन्होंने बताया, इसलिए कि अल्लाह वाले थे। और इन्होंने बताया कि नमाज के जरिए से मोमिन को मिराज मिलती है। और सर को भी नमाज में कटा कर ये बताया कि याद रखो, हमने सर को सजदे में कटा कर ये पैगाम दिया कि अगर हमें याद करना तो उसे याद करना जिसे हम याद करते हैं। हमें याद करना, जब हमारी मजलिसों में आना तो अगर हमें याद करते हो तो उसे न भूलना जिसे हम नहीं भूलते। हम सजदे में सर रख के अपने सर को कटा के ये करबला से मैसेज दे रहे हैं, इस मैसेज को कायनात तक फैलाइए। हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम, अगर तुम हमें याद करते हो तो ये देखो हम किसे याद करते हैं। हम सबको सजदे में रख के कटा के ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर हमें याद करते हो तो उसे न भूलना जिसे हम याद करते हैं। वो परवरदिगार को न भूलना, उस खालिक अकबर को न भूलना, उस जुल जलाल को न भूलना, उस रहमान को न भूलना जिसने हमको खल किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमको वसीला बनाकर भेजा ताकि तुम हमारे जरिए उस मकाम मुअज़्ज़म तक पहुँच जाओ। अल्लाहु अकबर। यही वो पैगाम था। कल के गुफ्तगू में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा क्यों इमाम हुसैन करबला में गए। इमाम को जब पता था कि करबला में हमारी शहादत होगी तो इमाम क्यों गए? एक सवाल। अगर इमाम को पता था तो क्यों गए, और नहीं पता था तो ज़ाहिर इमाम, अगर उसके पास इल्म गैब न हो तो ज़ाहिर इमाम नहीं होता। तो ये कल सारे सवालात पर कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आज का वक्त यहीं ख़त्म होता है। अज़ान गिरामी, तो फिर हम आज 1400 साल के बाद उम्मत इस्लामिया से ये कहते हैं कि हम उस शहजादे को याद करते हैं जो वारिस शरीयत है, वारिस आदम है। आप नमाज पढ़ने के बाद ज़ारत वारसा पढ़ते हैं। ज़ारत वारसा में आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़तिल्लाह, ऐ आदम सफ़ीउल्लाह के वारिस तुम पर हमारा सलाम। क्या मतलब? हुसैन इस ज़माने के आदम कई हज़ार साल पुराने, कहना ये चाहिए था सलाम अलैका या वारिसा नबील्लाह या सलाम अलैका या वारिसा मोहम्मद हबीबिल्लाह। ये आदम के वारिस हुसैन कैसे हो गए जाने गिरामी? उसकी वजह यह है कि आदम से लेकर ख़ातम तक तमाम ज़हमतें जो नबियों ने उठाई, उस ज़हमतों को पाए तकमील तक हुसैन ने पहुँचाया। उस ज़हमत को पाए तकमील तक
جو کام ابراہیم نہ کر سکے، جو کام یوسف و یونس نہ کر سکے، جو کام آدم نہ کر سکے، اس کام کو حسین نے کربلا میں انجام دیا۔ اللہ اکبر، اس قربانی کو حسین نے کربلا میں انجام دیا۔ عزیزو، میرے سامنے سے ایک روایت گزری اور عجیب سی روایت ہے، آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے روایت میں یہ دیکھا کہ ایک روز ایک بچہ تھا مدینے میں، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بہت ہی حساس جملہ ہے زان گرامی، فطری جملہ ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی ماں تھی اور وہ بیٹا چھوٹا سا بچہ تھا۔ بچہ اپنے ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک روز بچے نے اپنی ماں سے کہا، ماں کئی روز سے میں بھوکا ہوں، کئی روز سے پیاسا ہوں، ماں میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہوں، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ مدینے کا یہ بچہ یہ یتیم کہتا ہے، ماں مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں اگر بچوں کو بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے تو بچے تڑپ تڑپ کر جاتے ہیں، لوٹ کر پھر ماں کے دامن سے لپٹ کر کہتے ہیں، ماں کچھ ہو تو کھلا دے، ماں کچھ ہو تو پلا دے، ماں بھوک لگی۔ یا کبھی آپ سفر کریں اور سفر میں تھوڑی دیر ہو جائے تو بچہ ماں سے یا باپ سے لپٹ کے کہتا ہے، بابا بہت بھوک لگی ہے، اماں بہت بھوک لگی ہے۔ مدینے کا یہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں بھوک کی شدت سے میں بے حال ہوں، ماں بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، ماں مجھے مدینے میں کوئی ایسا گھر بتا دے جو میری بھوک کو مٹا دے اور میری پیاس کو بجھا دے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ ماں سوچنے لگی اور سوچتے سوچتے کہتی ہے، مدینے میں تو کوئی ایسا گھر نہیں ہے، لیکن ایک گھر ہے، میں بتاتی ہوں، جا اس دروازے پہ چلا جا، اگر ان کے پاس ہوگا تو ضرور تجھے کھلائیں گے۔ جا رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پہ چلا جا۔ عزیز راوی کہتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جو کئی روز سے بھوکا تھا، کئی روز سے پیاسا تھا، یتیم تھا، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، دق الباب کیا اس بچے نے۔ ایک مرتبہ زہرا نے پوچھا، کون؟ کہا، میں مدینے کا یتیم ہوں۔ عزیز، اس بچے کو زہرا نے اپنے گھر میں بلایا اور بلانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا، تو کون؟ کہا، میں مدینے کا یتیم ہوں۔ اے رسول اللہ کی بیٹی، میں کئی روز سے بھوکا تھا، میں بھوک مجھے یہاں تک لے آئی، اگر میں بہت شریف باپ کا بیٹا ہوں، میں بھوک کی وجہ سے یہاں آ گیا، ورنہ کبھی نہ آتا، بھوک مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے پاس بٹھایا اور اسے پیار کرنے لگی اور پیار کر کے کہتی ہیں، کہاں رہتا ہے؟ اس نے جگہ بتایا، ہم وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ شہزادی نے اس سے پوچھا، تیرے گھر میں کون کون ہے؟ کہا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں ہے جو مزدوری کرتی ہے اور مزدوری کر کے میرا پیٹ پالتی ہے، لیکن رسول اللہ کی بیٹی میری ماں کئی روز سے بیمار ہے، اس کی وجہ سے وہ مزدوری پہ نہ جا سکی اور میں کئی روز سے بھوکا ہوں، میری غیرت مجھے گھر سے نکال نہیں رہی تھی، لیکن ایک طرف بھوک کی شدت سے میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں کوئی ایسا گھر بتا دے جو میری بھوک جہاں مٹ سکے، تو ماں نے آپ کا نام لیا۔ عزیزو، فاطمہ زہرا سر جھکا کے رونے لگی، بچے کو سینے سے لگا کے کہا، بچے گھبرا مت، انشاءاللہ ہم تیری بھوک کو مٹائیں گے، ہم تجھے بھی غذا فراہم کریں گے۔ عزیزو، جزاکم اللہ، آپ تصور کریں، رسول کی اکلوتی بیٹی کے پاس یتیم مدینہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب تھوڑی سی دیر کے بعد علی گھر میں داخل ہوئے۔ راوی کہتا ہے، عجیب سا دن تھا اس دن، فاطمہ زہرا کے گھر میں فاقہ تھا، حسنین بھی بھوکے تھے، حسنین کریمین بھی بھوکے تھے، کچھ نہیں تھا گھر میں، حسنین بھی کئی روز سے بھوکے تھے۔ علی سے فاطمہ زہرا نے کہا، اے میرے والی و وارث، یہ ایک بچہ مدینے سے آیا ہے جس کی ماں مزدوری کرتی ہے، کئی روز سے اس کی ماں بیمار ہے، لہٰذا مزدوری پہ نہیں گئی، یہ بچہ بہت بھوکا ہے، شریف خاندان کا لگتا ہے، لیکن اس کی بھوک اس کو یہاں تک لے آئی، علی جا کر کچھ انتظام کرو۔ عزیزو، ایک مرتبہ علی نے کہا، کچھ نہیں۔ اب سنیے گا اس جملے کو، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے اپنی چادر کو اتارا اور اتارنے کے بعد علی سے کہا، اس چادر کو لے جا کر کسی کے پاس گروی رکھ دو اور پیسہ لے آؤ، میں اس یتیم کی بھوک کو، میں اس یتیم کو کچھ کھلانا چاہتی ہوں۔ اے زہرا، تیری عظمتوں کو سلام۔ علی گئے اور چادر زہرا کو لے کر گروی رکھا اور چند پیسے لے آنے کے بعد زہرا نے گھر میں روٹیاں پکائی اور پکانے کے بعد یتیم کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کر دیا۔ یتیم کھاتا رہا، زہرا کے چہرے کو دیکھ
देखता रहा। खाते खाते एक मर्तबा कहता बस रसूल की बेटी बस बस, मेरी भूख खत्म हो गई, मैं खा चुका। अजीजो, जब एक मर्तबा इसने इस जुमला कहा, शहजादी ने जो बची हुई रोटियां थी, जो रोटियां बच गई थी, इस यतीम के दामन में जब बांधना चाहा तो एक मर्तबा यतीम मदीना कहता है, शहजादी मैंने अभी आपसे सुना है आपके बच्चे भी तो कई रोज से भूखे हैं, ऐ शहजादी इन रोटियों को हसनैन को खिला दीजिए, मैं सैराब हो चुका हूँ, मुझे रोटियां नहीं चाहिए। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा ने कहा, नहीं बेटे, इसलिए कि हसनैन यतीम नहीं है, हसनैन का बाबा अली अभी जिंदा है, लेकिन तू मदीने का यतीम है, ये रोटियां अपने दामन में लेके चला जा, जब तक तेरी माँ बीमार है इन रोटियों को खाना और फिर आ जाना, हम तुझे अता करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अरे फातिमा ज़हरा, अरे जन्नतुल बकी को छोड़कर आइए, देखिए आपका बेटा करबला में किस तरह से भूखा और प्यासा है। फातिमा, आशूर के दिन क्या आपने असगर की प्यास को नहीं देखा? फातिमा, क्या अकबर के सूखे हुए लबों को नहीं देखा? अब्बास की शिद्दत प्यास को नहीं देखा? ऐ ज़हरा, करबला में आइए, एक 4 साला ये बच्ची है जो चचा के दामन से लिपट के कहती है, चचा प्यास की शिद्दत से मर जाऊंगी, चचा सबीले आप कर दीजिए, चचा थोड़ा सा पानी लाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। अजीजों, आज तो मुहर्रम है, हुसैन का मातम करने के लिए आए हो, हुसैन पर गिरिया करने के लिए आए हो, और ज़हरा को पुरसा देने के लिए आए हो, उस माँ को पुरसा देने के लिए आए हो। अजीजों, जो 18 साल की उम्र में आसा लेकर चलती थी, 18 साल की ज़ईफ़ा है फातिमा ज़हरा, जो 18 साल की उम्र में फातिमा ज़हरा आसा लेकर चलती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 मुहर्रम को हुसैन का ये काफिला जो 28 रजब को तड़पती हुई बेटी को छोड़कर आया था। मैंने अर्ज किया था, हुसैन ने मदीने में एक बेटी को छोड़ा था जिसका नाम सोहरा था, जो अली अकबर के निशाने कदम पर अपना दायां रुखसार रखकर सोई हुई थी, अकबर का इंतजार करती रही। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और 6 महीने में हुसैन करबला की जमीन पर कदम रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ये फातिमा सोहरा मदीने में इंतजार करती रही। चंद जुमले और आपकी ज़हमत तमाम अज़ादारों। हुसैन जब करबला की सरजमीन पर कदम रखते हैं, अचानक एक आंधी सी आई और हुसैन का घोड़ा वहीं ठहर गया। जब हुसैन का घोड़ा ठहर गया तो आका हुसैन ने कहा, सवारी बदलो। भाई अब्बास को बुलाया, भाई अब्बास यहाँ आओ। हुसैन ने 6 सवारियां बदली। जब हुसैन का रहवार आगे न बढ़ा तो एक मर्तबा दहबल हुसैन इला ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। हुसैन ज़ैनब के पास जाकर कहते हैं, बहन ज़ैनब, न जाने क्यों रहवार यहाँ से आगे नहीं बढ़ता। अजीजों, शहजादी ने एक मर्तबा अपने भाई से आहिस्ता से कहा, भैया जब से इस जमीन पर आई हूँ, इस जमीन से आपके लहू की बू आती है, ऐ भैया इस सरजमीन को छोड़कर जल्दी चले चलिए। अजीजों, हुसैन ने कहा, हा होना महत्तो हालना, यही हमारा काफिला ठहरेगा। हुसैन उस जमीन पर ठहर गए। अब यह हुआ कि बनी असद के लोगों को बुलाया जाए। वहां मुजारिया में कुछ लोग काम कर रहे थे। हुसैन ने एक ज़ईफ को बुलाया और बुलाकर पूछा, इस जमीन का नाम क्या है? उसने कहा, हादिही अर्दु नैनवा, इस सरजमीन को नैनवा कहते हैं। एक मर्तबा इमाम ने कहा, हल लहा इस्मुन आखर, क्या इसका और कोई दूसरा नाम है? कहा, युकाल लहा गादरिया, इसको गादरिया भी कहते हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हल लहा इस्मुन आखर। एक मर्तबा ज़ईफ ने कहा, मैं औलाद रसूल आप हैं, आपसे कहता हूँ इस सरजमीन को छोड़ दीजिए। इस सरजमीन का नाम हादिही अर्दु करबिन व बला, इस जमीन को कर्ब व बला भी कहते हैं। ऐ फरजंदे ज़हरा, इस जमीन पर जो भी आया वो अज़ाब, वो इस जमीन पर आने के बाद मुब्तला ब मुसीबा हुआ। ऐ हुसैन, इस सरजमीन को छोड़ दीजिए। अजीज़ो, हुसैन ने कहा, इसी मुकाम पर हमें रहना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अजीज़ो, आपकी ज़हमत तमाम, चंद जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। हुसैन ने 2 मुहर्रम को 60,000 दिरहम में ज़मीन करबला को खरीदा।
اور خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد عزیزوں بنی اسد کے لوگوں سے کہا چند جملے اور رحمت تمام کر رہا ہوں عزیزوں اس لیے کہ محرم جا رہا ہے زہرا کو پرسہ دے دو جو رومال لے کر آتی ہے اس ماں کو پرسہ دو جو حسین پر گریہ کرنے آتی ہے عزیزوں بلانے کے بعد کہا میں تمہیں اس زمین کو ہبا کرتا ہوں لیکن چند شرطیں ہیں ان ایک شرطوں میں ایک یہ ہے کہ چند مقام پر ہماری قبریں بنیں گی اور اس کے بعد جو زمین ہے وہ تم لے لینا لیکن جب ہمارا کوئی زائر اس سرزمین پر آئے تو اسے مہمان رکھنا ہمارے آنے والے سرزمین پر کسی کو تکلیف نہ ہو عزیزوں یہی وجہ ہے کہ آج تک کربلا میں جتنے لوگ جاتے ہیں ہر زائر کو کربلا میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی عزم اللہ لکم الاجر عزیزوں وہ جملے اور رحمت تمام ایک مرتبہ جوانوں کو بلا کر حسین نے کہا اے جوانوں جب ہم کربلا میں 10 محرم کو ہمارے لاشیں بے غور و کفن پڑے ہوں کہیں پر اکبر کا لاشا ہوگا کہیں پر قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے کہیں پر میرا بھیا عباس ہوگا اس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے کہیں پر اصغر کا لاشا دفن ہوگا کہیں پر تم دیکھو گے حبیب ابن مظاہر ہوں گے ارے کہیں پر اس 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا ہوگا تم ہمارے شہادت کے بعد لاشوں کو دفن کر دینا وصیت کے بعد عورتوں سے کہا اگر تمہارے مرد خوف حکومت کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا راوی کہتا ہے جب حسین عورتوں سے وصیت کر چکے ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا حسین نے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کہا اے کربلا کے ننھے بچوں اور تم کربلا میں ہماری شہادت کے بعد آنا کھیلتے کھیلتے ہمارے بے غور و کفن لاشے پر تم مٹی ڈال دینا میں کہوں گا زہرا کے لال تیری عظمت کو سلام ارے تو نے مدینے کو چھوڑا ہے تیری ماں نے جنت البقیع کو چھوڑا عزیزو جب حسین کا سر اسی وجہ سے جب کٹا تھا مقتل میں ایک ماں جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی تھی آ میرے لال حسین حسین میری آغوش میں آ جا انہی ہاتھوں سے میں نے تجھے پالا ہے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین